اس دنیا سے رخصت لیتے ہیں، ہم یہ اللہ کی امانت ہو جاتی ہے. جو اللہ کی امانت اللہ تک واپس پہنچانا ہے تو پورے عزت و احترام کے ساتھ پہنچانا ہے، ایسے ہی نہیں پہنچانا. غسل خانے پر شاید جانا ہوا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بہت ہی سائنٹیفک اور بہت ہی جاندار شاندار غسل خانے بنے ہوئے ہیں مکے میں بھی مدینے میں بھی. اب یہاں ہمارے ملک میں یہ سوچتے ہیں کہ چلیے گلی میں پنڈال ڈال دیں، اب آنے والی ٹریفک کو وہیں سے روک دیں. اب باقی جانے آنے والوں کے لیے بڑی دقت پریشانی. اور یہاں اپارٹمنٹس بھی بنے ہوئے ہیں، اگر نیچے محلائیں تو اپارٹمنٹس میں ڈر شروع ہو جاتا ہے، مسجد کو رکھے ہوئے غسل دے رہی، اب کون سی بلاد سے کھلا دے رہی. تو یہ ساری چیزیں، اس طرح کی باتیں ہمارے لوگوں کے دلوں میں گردش کرنے لگتی ہیں. میں مبارکباد دینا چاہوں گا جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے تمام عہدیداران کو بھی، اور خاص طور پر جو بڑے ماشاء اللہ جوان سال بھی ہیں اور بہت حکیم بھی ہیں، بہت دور ودیش بھی ہیں، اور معاملات کو اچھی طرح سے سمجھ کر تمام یہاں رہنے والوں کے درمیان میں ایک اچھا رشتہ قائم کیا، جن میں ہمارے ہندو بھائی ہوں، جہاں چاہے ہمارے سکھ بھائی ہوں، چاہے ہمارے دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھائی ہوں، سب کے درمیان میں ایک محبت کا رشتہ قائم کر کے یہاں شیواجی نگر اگر بولیں گے تو دوسرا جو خیال آتا تھا اسے آپ نے ماشاء اللہ اور دور کر کے سب کے درمیان میں ایک محبت کا رشتہ قائم کیا. اور آپ نے احساس کیا کہ چونکہ قبرستان جو قدوس صاحب ہے، یہاں اگر ہم غسل خانہ تعمیر کر دیں تو آنے والے دنوں میں یہ ایگزامپل بن سکتا ہے پورے ملک کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے. کیونکہ کئی سال مجھے امریکہ میں بھی قرآن سنانے کا موقع ملا ہے. عمران صاحب وہاں نے اس طرح کا حلق غسل خانہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ وہاں ایک الگ جگہ رہتی ہے، وہاں وہ غسل دے کے مسجد کو لے کر قبرستان پہنچتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. تو آپ نے یہاں بہت زبردست کارنامہ انجام ہوا ہے، اس پر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. کیونکہ بارش ہو رہی ہے، میں لمبی گفتگو نہیں کر پاؤں گا. تو اس غسل خانے کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یہ عمارت جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اسے شہید کر کے بنایا جا رہا ہے. ابھی ہمارے عثمان شریف صاحب نے کہا، بعض لوگوں نے مجھ سے کہا اگر کوئی غسل خانہ کہیں خبروں پر بھی بنا دیا جائے گا، یا اللہ اس میں بھی لوگوں کے لیے پریشانی تھی. میں ہمارے ان تمام یوٹیوبر بھائیوں کے ذریعے یہ پیغام ہماری پوری ریاست تک پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے MLA صاحب اور جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ جو غسل خانہ ہائیٹیک طریقے کا بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے آج سے بنیاد رکھا گیا. یہاں جو سامنے عمارت ہے وہ عمارت شہید کر کے انشاءاللہ اس پر یہ پورا غسل خانہ تعمیر ہوگا، جہاں عورتوں کے لیے بھی سہولت ہوگی اور ہمارے مرد احباب کے لیے بھی سہولت ہوگی. آپ لوگ دعا میرے ساتھ پڑھیں سب مل کے، اللہم حوا علینا ولا علینا. زور سے پڑھیں، اللہم حوا علینا ولا علینا. ایک اور بات پڑھیے، اللہم حوا علینا ولا علینا. انشاءاللہ آپ تمامی حضرات سے آپ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دے، اور بغیر کسی رکاوٹوں کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشقتوں کے یہ کام مکمل ہو جائے، اور جلد سے جلد مکمل ہو جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اپنے عزیزوں کو غسل آخری غسل دے سکیں، اور ان کے لیے صحیح معنی میں دعائیں کر سکیں. اور خاص کر ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے تمام تر ذمہ داران،
और हमारे चेयरमैन आले जनाब अलहाज अब्दुल सत्तार सिंह साहब, हमारे जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी आले जनाब उस्मान शरीफ साहब, जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी आले जनाब अलहाज अब्दुल रहमान साहब और ट्रस्टी आले जनाब अलहाज निसार एडवोकेट साहब और यूसुफ साहब, इन तमाम अहबाब के लिए भी आप दुआ करेंगे। देखिए, हम सबका ये तजुर्बा रहा है कि जब भी हम किसी के आखिरी दीदार के लिए जाते हैं और अक्सर बेशतर मुसलमान छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में या कई मंजिला इमारतों में भी जो रह रहे हैं, वहाँ पे अपने अजीज के आखिरी रस्मात को अदा करने के लिए उसमें जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, छोटे घरों में रखकर मैयत को किसी के दीदार कराने के लिए चंद दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जो जमा होते हैं, उनको दीदार करवाने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जगह की किल्लत है, तंगी है, फिर उनको वसूल देने के लिए वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे मस्तूरात को, माँ बहनों के जनाजे को भी हम सड़कों पर पर्दे बांध कर शामियाना डालकर वसूल देते हैं। ये एक अच्छे माशरे की पहचान नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से खरीदे हुए अपार्टमेंट्स में अगर कोई इंतकाल हो जाए तो वहां पर उस मैयत को वसूल देने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। तो और ऑब्जेक्शन भी होता है कि आप यहाँ पार्किंग की जगह वसूल दे रहे हैं, आप सड़क पे दे रहे हैं, फुटपाथ पे दे रहे हैं। तो ये सब देखकर हमारी ये सोच थी कि एक ऐसा वसूल खाना बनाया जाए जहाँ पे ना सिर्फ वसूल दे, सारे रस्मात अदा करें। किसी के घर में सहूलत नहीं है, चाहे अमीर हो वो गरीब, वो उस बॉडी को पहले से यहाँ बुक करें, उस मैयत को यहाँ लेकर आ जाए। यहाँ पर 6 गुस्ल खाने बनाए जाएंगे, 3 मस्तूरात के लिए, 3 मर्दों के लिए और एक सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट केसेस के लिए, दूसरे जो केसेस होते हैं उसके लिए, मेडिकल वेस्ट जो निकलता है उसके लिए बनाए जाएंगे। और वसूल के बाद उनको वहां रखकर दीदार करवाने के लिए एक हॉल बनाया जाएगा जहां पे 200-300 लोग, 400 लोग खड़े हो सकते हैं। औरतें जो घर की वो वहां आ सकती हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनके लिए एक अलग इंतजाम, वजू बनाने के लिए एक इंतजाम। और जब तदफीन हो जाए तो उसके बाद जो लोग आए हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, ये हस्बे मामूल है कि हम उनको खला कर दूर से आते हैं, वो उनको रुखसत करते हैं। तो एक अच्छी किचन बनाएंगे, एक अच्छा डाइनिंग हॉल बनाएंगे ताकि वो लोग आए, वहीं पे उनका पकवान हो, वहीं पे उनके रिश्तेदारों को खिला पिलाकर उनको वापस भेजे। तो ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब से मैं पब्लिक फील्ड में रहा हूँ, मैं लोगों के घर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हमने इतनी सलाहियत नहीं है कि हम एक हाईटेक, एक पूरी सहूलियत वाला एक गुस्ल खाना बनाए ताकि पूरे माशरे को इसकी सहूलत हो। पूरे हिंदुस्तान में ये मॉडल वाला कोई गुस्ल खाना किसी भी कब्रिस्तान में नहीं है। ये अफसोस की बात थी। तो इसलिए हमने ये सोचा कि जब अल्लाह ने मौका दिया है तो क्यों नहीं हमारे खुद्दूस साहब कब्रिस्तान में एक हम मॉडल तैयार कर दें ताकि हर शहर के लोग उसको देखें और उसको अपने अपने शहर के कब्रिस्तानों में वो तामीर करें ताकि पूरे माशरे को इसका फायदा हो। क्योंकि जब हम इस दुनिया से रुखसत लेते हैं, हम ये अल्लाह की अमानत हो जाती है। जो अल्लाह की अमानत अल्लाह तक वापस पहुंचाना है तो पूरे इज्जत और एहतराम के साथ पहुंचाना है, ऐसे ही नहीं पहुंचाना, इज्जत और एहतराम के साथ पहुंचाना। तो वो इज्जत और एहतराम उस तरीके का माहौल, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ही हो सकता है। तो इसीलिए ये काम हमने किया है। मुझे मालूम है पूरी कई जगहों से, दूर दराज से लोग मैसेज कर रहे हैं, खुश हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि बंगलोर शहर से जो पैगाम गया है, अब हर शहर में उस पैगाम को समझकर वहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अपने कब्रिस्तानों में
सवाल ये है कि अभी ने गुजारिश की थी कि लोग बढ़ रहे, आबादी बढ़ रही है, नया खबरस्तान की बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम भी हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि नया खबरस्तान दे। तो मुतालबा हुआ है, इंशाल्लाह उसकी खोज भी जारी है कि कहाँ हो सकता है। इंशाल्लाह उसको देखिए 4 करोड़ तकरीबन लागत में ये बनाना है। अभी तो मैंने 2 करोड़ इस साल दिए हैं, जैसे ही काम शुरू होगा फिर 2 करोड़ रुपए इसको सैंक्शन करवाएंगे और तकरीबन 1.5 साल में ये तैयार होगा, मुकम्मल होगा। और इसकी कोई फीस या कोई मेंटेनेंस हम नहीं करेंगे, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा, जो देर मिनिमम कम से कम फीस पर इसको चलाने की मेरी उनसे इल्तिजा रहेगी। नहीं, कोई वक्त का मामला नहीं है। ये जो हुकूमत मुझे जो मेरे हल्के के डेवलपमेंट के लिए मुझे दिया जाता है, मैंने उसमें इसका इस्तेमाल किया है। बीबीएमपी का फंड, बहुत लोग हैं गुस्ल खाने को बनाने के लिए, ये डोनेशन की और फंड की बात भी नहीं थी। ये बात जरूरत की थी, एक आइडिया की थी, एक सोच की थी। वो सोच एक तजुर्बे से आता है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरी नसीब में आप लोगों की दुआओं से इस काम को अंजाम देने के लिए उसने शायद मुझे चुना होगा, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल मैं अपील करता हूँ दूसरे हमारे नुमाइंदों से और समाज के बड़े बुजुर्गों से और साहिब निसाब बहुत सारे हमारे अहबाब हैं उनसे कि हर शहर में जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, गुर्बत ज़्यादा है और अपार्टमेंट का कल्चर ज़्यादा है, ऐसे शहरों में एक ऐसा गुस्ल खाना, एक ऐसा सेंटर बनाए ताकि तदफीन के जो आखिरी रस्मात हैं वो सड़कों पर ना किया जाए, उनकी आखिरी विदाई सड़कों पर गुस्ल देकर ना किया जाए। परेशानियों में उसका सारा काम जो विदाई का जो तदफीन का जो सारा जो हमारे कार्रवाई है तो पूरे इज्जत और एहतराम के साथ करने के लायक एक इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह बनाए। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें इस मौके पे मौका दिया है और ओहदा दिया है ताकि हम लोग अवामुन्नास की दिल खोलकर खिदमत कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड एक बड़ा ख़दीम इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हमारे 2 कब्रिस्तान हैं, 2 तरफ में जो खुद साहब कब्रिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुस्ल खाने हैं लेकिन थोड़े उतने ख़ास कंडीशन में नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा डिलापिडेटेड कंडीशन में है और जब टाइम एंड अगेन हमारी और हमारे जो एमएलए हैं जनाब रिजवान अरशद साहब, इनके साथ हमारे रेगुलर डिस्कशन होते रहते हैं रिगार्डिंग मस्जिद डेवलपमेंट, रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। और गुज़िश्ता बार भी जब जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड से हम लोग हाईकोर्ट से केस जीते थे तब भी जब वॉल कंस्ट्रक्ट किए पीछे जो कम्युनिटी पार्ले का रोड है वहाँ पर भी चर्च स्ट्रीट जो रोड है तो वहाँ पे भी रिजवान भाई ने दिल खोलकर हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी टीम हमारे साथ थी, हमारे जमील भाई थे, हमारे परवेज भाई थे, हमारे शरीफ साहब थे, जावेद भाई थे, पूरे हम लोग मिलकर वहाँ पे काम अंजाम देकर हैं। और इसी दौरान कई गुफ्तगू हमारे चलती रहती है कि हम लोग क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम इस गुस्ल खाने को एक नया रूप दे इसे। तो इसी दौरान एमएलए साहब से भी हमारी डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के दौरान प्लान्स बने, स्केचेस बने और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे इसकी संगे बुनियाद रखी गई है। जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई है तो जो हमारी फुटप्रिंट है जो बिल्डिंग का, इसी फुटप्रिंट पर अल्हम्दुलिल्लाह बिना कोई खबर को डिस्टर्ब करे हुए एक नया बिल्डिंग यहाँ पे तामीर होगी जिसमें ग्राउंड फ्लोर में जो हमारे एग्जिस्टिंग दुकान हैं वो भी आएंगे और उसके बाद जो मल्टी मैं समझता हूँ एक मल्टी मॉडर्न खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है। और मैंने समझता क्योंकि हम लोग बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, रिजवान भाई की टीम थी, हमारी टीम थी, कई गुस्ल खाने हम लोग पूरे कर्नाटक में विजिट कर हैं और जो इस तरीके का गुस्ल खाना यहाँ पे बन रहा है मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में किधर भी इतना अल्ट्रा मॉडर्न गुस्ल खाना रहेगा। और यहाँ पे ख़वातीन के लिए भी है, मर्द हजरात के लिए है और दूसरी तौर पर जो एक्सीडेंट विक्टिम्स रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल गुस्ल खाना भी यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा एक फ्लोर में एक बड़ा हॉल भी रहेगा। हॉल में अगर कोई कुछ लोग आकर यहाँ पे कुछ हॉल यूज़ भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और उसी के साथ ग्राउंड फ्लोर में एक व्यूइंग एरिया भी रहेगा। अगर ख़वातीन जिनको सहूलत नहीं है
वो आकर यहाँ पे अपने मरहूमों को देखना चाहते हैं, जनाजे को देखना चाहते हैं, तो वो भी आकर यहाँ पे अपना मरहूमों के दीदार यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा स्टाफ का जो एग्जिस्टिंग क्वार्टर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इससे बेहतर क्वार्टर्स बना के हम लोग को देंगे।